Hey all, good morning. So today's question is how people score 200 plus marks, okay? And provided that should also be your aim to score 200 marks due to obvious reasons. Why obvious reasons है ना यार, क्योंकि the more you score, the more chances for you to get merit in, right? So I've seen a lot of people, not a lot of people, but couple of my friends who got merit out, all right, because of the marks they have scored. See, if you try to see the logic behind it, let me give you out everything. Why do you want to go for more and more marks? But this is not the same case for CDS. जो CDS में जो आर्मी में या नेवी में जाना चाहते हैं, वहां पर कट ऑफ की उतनी लाइक इम्पोर्टेंस नहीं होती जितनी एफकेट में थी. वहां पर भी होती है, बट कंपैरेटिवली यहाँ पर ज्यादा आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ कट ऑफ. वाई? बिकॉज सी, apart from flying branch, every other branch has a lot more competition. Why? Because flying branch का जो medical होता है, the medical which is conducted for flying branch is like another level, and there are a lot of people who get merit rather medical out. So all of them comes to, and वहाँ से medical out होना is मतलब flying branch से, like you can't, like once you are medical out, there is very high possibility that you will not be able to clear it in flying branch in the next attempt as well. So there are a lot of people who who go for ground duty, non tech background और logistic और जो भी चीज़ है, इसलिए वहाँ पर competition बहुत ज़्यादा होता है. That is why cut off remains very high for other branches compared to the flying branch. All right, so that is why scoring more and more marks becomes very important, और fact of necessity हो जाती है, ठीक है. So how people, like I am giving you my friend's perspective, all right, from my friend's perspective, how they used to get, or how what should be the approach to get 200 plus marks. I'll tell you, your aim should be very clear कि आपको 200 टच करना ही करना है, ठीक है. नाउ सबसे पहले यार देखो, आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स, ऑलराइट, कि क्या चाहिए आपको एट दिस टाइम. नाउ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आई वुड अर्ज यू टू वॉच दैट प्रीवियस वीडियो, क्योंकि मैं कार्ड में दे दूंगा. फाइन. सबसे पहला इज क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट. जो भी आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, all the concepts which you are, all the topics which you are trying to cover for your examination, that should be 100%. For example, I'm attempting, or rather I'm studying profit and loss. I've studied profit and loss completely. Now I should be in a position to solve each and every question from the topic profit and loss which comes in my way, on my way. All right, I should be able to, कैसा भी क्वेश्चन आए, I should be able to solve that question. ठीक है. कम टॉपिक पढ़ो, लेकिन अटमोस्ट लाइक उसको उतना इंपॉर्टेंस दो कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. उसके एटलीस्ट 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए आपके. दैट हैज टू बी द अप्रोच, लाइक व्हाट आई वांट यू गाइज टू बी. ठीक है. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हैज टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला यार. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कहीं से भी पूछ सकते हैं. पिछले एफकैट में आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट, आई हैव हर्ड माय स्टूडेंट्स सेइंग दैट ये इक्विनॉक्स के क्वेश्चंस आए थे, जियोग्राफी से क्वेश्चंस आए थे. नाउ it is very unlikely for AFCAT to ask question from geography, alright, but they did ask, alright. So you never know कि कहाँ से कैसे questions fire up होंगे. All you can do is you can just see the trend, or you can just compare the previous year question paper and then try to compare what are questions they have asked, alright. और similarly उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है. कैसे जीएस को पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा कमिंग लेक्चर्स में, कमिंग वीडियोस में, ऑलराइट. सो सबसे पहला क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हैज टू बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी, बॉस. दैट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई वांट यू गाइज टू डू, बिकॉज सी, लाइक अगेन आई हैव टोल्ड यू, राइट, आप ऊपर से पढ़ेंगे, यू हैव स्टडीड हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स, बट यू आर नॉट लाइक, ऐसे कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ, ऐसे देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, लेट मी रीफ्रेज इट, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. सो आपको जैक ऑफ ऑल होना है, बट द थिंग इज वो जैक ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि आपने सिर्फ ऊपर से पढ़ा है, ठीक है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू शुड हैव सम इन डेप्थ नॉलेज अबाउट इट, ठीक है. सीडीएस से थोड़ा कम, लेकिन आपका जो भी एसएससी सीजीएल है या जो नॉर्मल जो अप्रोच होता है उससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए. एंड अगर मेरी बात मानो तो आप थोड़ा सा सीडीएस जितना ही पढ़ो जीएस के लिए, इफ यू आर अप्रोचिंग फॉर एफकैट गाइस, ठीक है, जीएस. क्योंकि यार यू नेवर नो, यू सीरियसली नेवर नो अबाउट जीएस, ऑलराइट. एंड इफ यू कम फॉर मैथमेटिक्स और रीजनिंग गाइज, आई एम टेलिंग यू,
ब्रह्मास्त्र है वो, ठीक है, जो कहते हैं ना, आई एम सॉरी, लाइक नॉट सॉरी, व्हाट फॉर सॉरी, it's very important for you to start with mathematics and reasoning, because मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग जो है टॉपिक है, यहाँ से यू काइंड ऑफ मेक आउट कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द फैक्ट कि आप इंग्लिश और जीएस में यू नेवर नो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे. वट एवर अंडर द स्कन, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ठीक है, वट एवर लाइक इट्स द ओशन, ऑलराइट, वट एवर कुड बी आस्क्ड, सो यू नेवर नो, ठीक है. सो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. फाइन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट सीरीज, जो मैंने आपको कल बताया था. टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर लो आप, ठीक है. अगर मेरी बात मानोगे तो आप ग्रेड अप का ले लो, ठीक है. ग्रेड अप का नहीं लेना तो कोई भी करो. द मेन फैक्ट इज आपको वो एनवायरमेंट की आदत हो जानी चाहिए अभी तक, ठीक है. आपको पता चलना चाहिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है. दैट इज द पॉइंट. एंड देन व्हेन यू आर डन विथ टेस्ट सीरीज, आई वुड वांट यू टू गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. Previous year question papers becomes very important, because that is what you are going to give the examination. The level थोड़ा सा इंक्रीज होगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है. मैं बता रहा हूँ सेम वैसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन पैटर्न सेम आएगा, ये आप गेस कर सकते हो. मैंने भी 2 साल एफकेट दिया है, 2 बार एफकेट दिया है, क्लियर किया है. सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दी पैटर्न्स, हाउ दैट पैटर्न वर्क्स. ओके. सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देना है और सारा देना है और टाइमिंग के साथ. फाइन. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड देन कम्स हिज परफेक्ट स्ट्रैटेजी. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रैटेजी इज, कौन सा, नाउ रिमेंबर एफकेट डू नॉट हैव सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, अनलाइक सीडीएस में सेक्शनल कट ऑफ है 20% ऑफ ईच सब्जेक्ट, बट यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. सो विच मीन्स यू कैन अटेम्प्ट एफकेट में जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता है आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. इट्स अप टू यू. सो ये जो स्ट्रैटेजी है, बिलीव मी गाइस, साइकोलॉजी से खिलवाड़ मत करो, ठीक है. जो वो स्टार्टिंग में जो आपका मोटिवेशन रहता है ना, प्लीज कीप अप टू दैट मोटिवेशन. पहले के 10 क्वेश्चन बन गए ना, आई कैन बेट यू आपका पेपर आराम से जाएगा और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे. पहले 10 क्वेश्चन में अटक गए आप, तो आपकी साइकोलॉजिकल जो डिसएडवांटेज है आपको आ जाएगी. आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आप यू विल टेंड टू मिस्टेक. 3 into 3 6 और 3 + 3 becomes 9. मेरे से हो चुका है, आई एम श्योर आपसे भी होता होगा, सबसे होता है सिली मिस्टेक. यहाँ पर चांस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट नो हाउ मच टाइम्स डिड आई टोल्ड यू गाइज दिस कि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी स्ट्रैटेजी बताओ, मेरी क्रोनोलॉजी बताओ, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, या फिर मैं इसमें इंटरचेंज करता रहता हूँ, ठीक है. रीजनिंग या मैथमेटिक्स आप अपने हिसाब से चूज कर लो, एंड देन इंग्लिश एंड देन जीएस. क्यों पता है? क्योंकि मैथमेटिक्स में यू नीड टाइम, यू नीड कॉन्सेंट्रेशन, यू नीड योर फ्रेश माइंड, एंड सिंपल होते हैं क्वेश्चंस. द मोमेंट इन एटलीस्ट 40 to 50 मिनट्स में अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग खत्म कर लिया तो आपने आधा पेपर खत्म कर लिया. एंड देन इंग्लिश एंड जीएस इज लाइक, आता है तो आता है. जीएस 10 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, अगर आता है तो आप क्वेश्चन पढ़ते से आंसर टिक कर दोगे, नहीं आता तो नहीं आता. बट अनलाइक मैथमेटिक्स में यू नीड टू सॉल्व, एंड देन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, एंड देन यू हैव टू चेक वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से बनाओ. मैं अपनी थोप नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू कि मेरी स्ट्रैटेजी अपनाओ, आप अपनी बनाओ, लेकिन स्टिक टू दैट. डू नॉट चेंज इट फॉर एनीवन एल्स. ऑलराइट, अभी तो चेंज करना बिल्कुल भी लाइक आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट, ठीक है. एंड लास्ट, when you go for the examination, guys, when you go for examination, please go with a fresh mind. Yeah, this might looks very silly, but when you're going for examination, please go with a fresh mind. All right, उसके 2 दिन पहले तक do not make yourself in a center picture for any big scene. All right, what I mean to say is, अगर just imagine 13th of Feb को आपका एग्जाम है और आपको 12th of Feb में, या फिर सपोज 15th of Feb आपका एग्जाम है और 14th of Feb में वैलेंटाइंस डे के दिन आपने जस्ट से हाइपोथेटिकली आपने यू प्रपोज टू योर गर्ल एंड शी सेड नो. The entire examination, I'll bet you will not clear the examination. Entire examination you will be thinking about her only. That is for sure. और let's change the scenario. आपने अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया, आप पूरे एग्जाम में वो झगड़े के बारे में ही सोचते रहोगे,
ठीक है. सो दैट इज व्हाट, ये जो अपना मेंटल हेल्थ है उसको सही रखो उस 1 2 3 दिन के लिए बस, ठीक है. प्लीज डोंट थिंक टू मच अबाउट एग्जामिनेशन, प्लीज डोंट थिंक टू मच अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, प्लीज डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन अननेसेसरी थिंग्स एट दैट टाइम. क्योंकि यार उस टाइम पे अगर आपने ये कर दिया तो आपका 3 4 महीने का जो मेहनत है, द हार्ड वर्क विच यू हैव पुट इन फॉर 3 4 months will go waste, will go in vain, which I don't want you to. All right, because it all boils down to that one day when if you correct the answer, no matter with what method, with what approach, कैसे, doesn't matter, आपने उस एक दिन सही कर दिया ना आंसर, ऑल जो आपकी पहले की मेहनत है वो सारी वर्थ इट हो जाएगी. उस एक दिन आपने, इफ यू शेड इट आउट ऑन दैट डे, एवरीथिंग विल बी गॉन, यू वोंट इवन रियलाइज. एंड गाइज, एक एग्जाम नहीं क्लियर करना विल पुश योर सेल्फ टू गेट इन टू अकेडमी फॉर 1 year एटलीस्ट, नॉट एटलीस्ट, लाइक मैक्सिमम 1 year. और इतना ही लेके चलो, क्योंकि इस एग्जाम में नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्जाम आएगा कहाँ, अगस्त में, अगस्त में शायद से, अगस्त में आएगा. फिर उसके बाद में आपकी AFS भी आएगी, फिर उसके बाद में मेडिकल आएगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद में अकेडमी ज्वाइन होंगे आप. तो एटलीस्ट 6 7 महीने का तो पुश हो जाओगे आप, ठीक है. एंड गॉड नोज कि कितने लोग का लास्ट अटेम्प्ट है. जब लास्ट अटेम्प्ट आएगा आपका तब बहुत लोचा हो सकता है. सो डोंट टेक रिस्क. वो तीन दिन ना अपने आप को ठीक रखो, ठीक है. सो ये चारों पांचों चीज मैंने आपको बताया. क्या क्या बताया, लेट अस रिवाइज. ओके, सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. अभी से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी निकालना स्टार्ट करो, ठीक है. टेस्ट सीरीज हर रोज 2 लगाते रहो, ठीक है. टेस्ट सीरीज से थक गए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है. और टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका एम होना चाहिए 200 मार्क्स, ओके. एंड देन आपका, जब आप ये दिमाग में रखो कि मुझे 13 14 15 या 11 12 13 14 15 जब भी आपका एग्जामिनेशन है उसके 2 3 दिन पहले, आई डो नॉट वांट टू इंडल्ज माई सेल्फ इन एनी अननेसेसरी थिंग्स विच विल मेक माई एग्जाम गो इन वेन. ऑलराइट, आई होप आपको चीजें समझ में आएगी. नाउ यही सारी चीजें लोग करते हैं, देन ओनली दे गेट 200 मार्क्स. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोज. मेरे फ्रेंड्स के 2 वीडियो जिन्होंने दोनों ने 200 मार्क्स स्कोर किया एंड देन दे गॉट रिकमेंडेड एज वेल. कार्ड में दे दूंगा, वो देखो उसको एंड देन सी हाउ मच यू आर इन, ठीक है. कितने पानी में हो आप, ठीक है. और अभी से प्लान करना स्टार्ट करो, अभी से ये सब मेहनत करना स्टार्ट करो, देन ओनली आपको समझ में आएगा कि कितने पानी में हो. इट्स नॉट टू लेट, बट हाफ कैट इज अप्रोचिंग. और ऐसे अप्रोच हो जाएगा, ऐसे एग्जाम के दिन आ जाएंगे, ठीक है. हर रोज प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. आई एम हियर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प यू वांट. आप कमेंट करो, I'll solve all the comment you have. All right, questions you have. Fine. So I want you to subscribe because I'm coming up with daily videos. Help me reach some goals. ठीक है, कितने कम subscribers है. Fine. And yeah, I'm here for any sort of your help. Instagram की ID दे रखा हूँ, तो user ID दे रखा हूँ, वहाँ जाके text कर देना. I'll be happy to reply your text. I've never denied anyone. Alright. YouTube के कमेंट में कमेंट करो, ठीक है. कमेंट करो, वहाँ पर भी रिप्लाई करूँगा मैं. फाइन. सो विद दैट नोट, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.